Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Learn Code Easily. So today we will continue with our stack series. So अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसे एक्सेस करिए बिकॉज हम लोग इसे कंटिन्यूसली हम लोग इसको कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। हम जो कंटिन्यूस वीडियो बना रहे हैं और पहले हम लोगों ने ईजी बनाया, अब मीडियम बना रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू है चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक भी करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दिया गया है कि हम लोग को एक स्ट्रिंग दी गई है और हम लोग को वैलिड स्ट्रिंग विद पैरेंथेसिस हम लोग को रिमूव करना है। व्हाट्स मीन वैलिड स्ट्रिंग? वैलिड स्ट्रिंग मींस अ स्ट्रिंग दैट हैव अ equal number of opening and closing braces. So what it means? It means that you do not have any extra braces. Example, if we have this one A, B, then C, then D, then E. So is it valid? Is it valid? No, because we have opening braces but we do not have closing braces. Okay, the closing braces could be at this position. So if there are two opening braces, then there should be two closing braces as well, but in this case it is not. So what we have to return, we have to simply return this one. Okay, now this is our valid string. In the question it is given lead, then we have a T, then we have a C, then we have O, then we have a D, then we have a E. So this is a pair, this is a pair, but there is no pair of this one. So our return string will be this one only. If we have a then B, then C, then D, so there is no opening braces for it. Okay, so this is not there, so our resultant string will be this one. If we have this one, then also it will be empty because there is no opening braces of it, there is no closing braces of it, so we need to remove all of them. In the same case we have to remove this one. If we have this one, then what we need to remove? Both have pair but there is no pair of it, so we will remove AB. Our resultant string will be like this one. I hope this is clear. Then how we will solve it? First step, what we will do, we cannot, if we have to modify it, so we cannot modify the string because this is immutable. So first we will uh, change it to into mutable form, that is list. Assume if we have this one, if we have this one. Okay, so first I will change it to list, then it will be L E E, then this one, then this one, then this one, then this one, this one, and this one. So this is our list. Okay, now we will take a stack because this is stack series, so we will solve with the help of stack. So when we see the opening braces, we will insert, we will push the index value of that particular particular value. So 0 1 2 3, so we will insert 3, then we will move, then again it will be 5, then again if we find the closing braces, we will pop it out from our stack. But as you can see there is no other closing braces, so what we will do now, I can simply say that at this place remove that particular element and insert the empty string, insert this one, we are inserting this one. So how it will be helpful? So our S will be L, then it will be E, so at 3 place what I need to insert, I need to insert empty, then it will be this one, then it will be this one, then it will be this one, then C, then closing braces. No, 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 no. 0 1 2 3 4 5. Oh, we have a valid one now, we have this one as well, so let's take one more, this one. So now we have this one as well. So first we will insert 3, then 5, then if we find the closing braces, then I will pop this one. If we again find the closing braces,
I will pop this one. Now I need to pop this one, but it is empty, so I will simply insert that particular value. So the 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now I will insert 9. So here it will be this one. Now we have this one. So this is the ninth. So at this place I will insert the empty one, because when we join it, it will give me this one. It will give me this one. Okay, so when, because this is the list, you can say ये हमारी लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है. अगर आपने L को और E को अगर T लिखा है, अगर आप इस जगह पे अगर आप इम्प्टी करते हैं, मतलब हमारी L E और इम्प्टी अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, तो हमारी रिजल्टेंट लिस्ट क्या होगी? LE होगी. ओके, अगर इसके बाद हमारे पास कोई T होता और यहाँ पर इम्प्टी होता, सो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती? LET. सो इन द सेम वे हम लोग पहले स्टैक में उसे इंसर्ट कर रहे हैं. स्टैक में हम लोग यू कैन से अनबैलेंस्ड ब्रेसेस को इंसर्ट कर रहे हैं. उसमें सारी वैल्यू आ गई. जो जो जिस वैल्यू को हमें रिमूव करना है, सिंपली हम क्या करेंगे? अपने स्टैक को ट्रैवर्स करेंगे. ओके, और क्या करेंगे? स्ट्रिंग, इसमें क्या? इंडेक्स. सो इंडेक्स, so this is big O of one solution, this is big O of n, so the overall time complexity is big O of n. Okay, so this is when we need to assign the empty, and there is one more loop above this in which we are forming the stack. So in this we are also going through our string, so that is also big O of n. So the time complexity is big O of n plus big O of n. So there is total big O of n time complexity. What is space complexity? We are taking the space, so that is also big O of n. अरे हो जाओ ऊपर. Yeah, this one. I hope this is a little bit clear to you, but it's okay if not clear. I will make you understand in this video as well, in the coding part. So first we will take the string. First we will change our string into the list part, then it will be this one. Then simply I need to just take the string लिया. आप क्या करना है? अब क्या करना है? आप सिंपली एक वाइल लूप को चलाना है. अब वाइल लूप क्या कहेगा? वाइल लूप कहेगा कि हमारे इन तक जाओ, स्ट्रिंग के इन तक हमको लेके जाओ. ओके, वो कहेगा अरे भाई लेके तो जा रहे हो, पहले आई को इनिशियलाइज तो कर दो. बोला ओके, इनिशियलाइज कर दिया. अब क्या कहना है हमको? कहना है कि अब अगर एस ऑफ आई अगर ओपनिंग ब्रेसेस है, तो सिंपली मेरे में अपेंड कर दो, मेरे में पुश कर दो. ओके भाई, पुश कर दिया. अब क्या करना है? अरे क्या हो रहा है भाई? अब क्या करना है? अब हमने बोला कि अगर क्लोजिंग ब्रेसेस आता है, अगर क्लोजिंग ब्रेसेस है, एस ऑफ ई आई अगर क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो क्या करना है? स्टैक को पॉप करना है, स्टैक से पॉप करना है. बिकॉज अगर पहला क्लोजिंग है, दूसरा ओपनिंग, मतलब कि वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, वो तो पेयर है ना, तो उसको तो पॉप ही करना है. पॉप कर दिया. अब हमें ये करना है एज्यूम. अच्छा, ये तो किस केस में हो गया? ये तो इस केस में हो गया ना. बट अगर हमारा ये आ जाए तो, let's take this one like this, ये आ जाए तो, हाँ, अगर ये आ गया तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा, बोलेगा अरे भाई ये है तो पॉप कर दो. बट पॉप कर दे, पहले एलिमेंट तो होना चाहिए ना स्टैक में. तो एलिमेंट तो स्टैक में तो एलिमेंट ही नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं भैया स्टैक की लेंथ, अगर स्टैक हमारा, यू कैन टेक द लेंथ एज वेल, अगर ये पॉप नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं है, तो पॉप कर दो. इल्स क्या कर दो? इल्स इस पोजीशन पे एम्प्टी कर दो. अगर इस पोजीशन एम्प्टी हो गया, तो पहले हमारी लिस्ट क्या थी? ये थी. आवर लिस्ट वाज इन दिस वे, ए, देन वी हैव बी, देन वी हैव दिस वन. नाउ अगर हमने इसको पा लिया, तो हमने क्या बोला? भैया इसको एम्प्टी कर दो. लो, अब इस जगह एम्प्टी हो गया, और हमारी स्टैक में क्या? चलो हमने मान लिया हमारे पास ये वैल्यू है. चलो एक और अनबैलेंस्ड और ले लिया, ये हो गया. सो हमारे पास ये हो गया. अब ये तो हमारा एस हो गया.
हमारा स्टैक क्या होल्ड करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर एम्प्टी कर दिया, ये हमारा स्टैक में पॉप होगा, ये हमारे स्टैक में पॉप हुआ। उसके बाद इसको जैसे ही क्लोजिंग प्रेसेस मिलेगा बोलेगा भैया स्टैक तो एम्प्टी नहीं है तो पॉप कर दो, हमने पॉप कर दिया। दोबारा हमारा यहाँ पर आएगा तो दोबारा क्या बोलेगा कि लो भैया फिर से हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया, तो फिर से यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे, बट यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे ओपनिंग ब्रेसेस, बिकॉज क्लोजिंग ब्रेसेस का आपको दिखा चुके हैं, सो अब लेंगे ओपनिंग ब्रेसेस का। सो ये बोलेगा अच्छा ये तो ओपनिंग ब्रेसेस आ गया, चलो इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दिया। अब देखो हमने यहाँ पर भी इसको एम्प्टी कर दिया और स्ट्रिंग एस में, और ये क्या है हमारा स्टैक है, स्टैक में ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने स्टैक में जाएंगे, और बल्कि हमें ये नहीं करना, हमें तो इंडेक्स करना है ना, तो इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 5, दैट वी आर इंसर्टिंग द इंडेक्स ऑफ एंड बैलेंस पैरेंथेसिस फॉर पॉप इन स्टैक। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई कि स्टैक में एस में जाओ और उस जगह पे एम्प्टी इंसर्ट कर दो, दिस वन ओनली। नाउ वी नीड टू रिटर्न, we need to join it and we need to return। और ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा इधर। अब ये अभी 5 हो गया। अब हम स्टैक को जा रहे हैं, स्टैक में हम ट्रैवर्स करेंगे, बोलेंगे 5 क्या है, ये है, इस जगह पे क्या कर दो एम्प्टी कर दो। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, ज्वाइन में मिलेगा ए बी, दिस वन। नाउ दिस इज ऑल वी नीड टू डू, वी हैव टू डू। चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या कोई एरर आएगा, आएगा क्या है, लिस्ट, ओके ओके ओके, ये हमारा ये, अच्छा ये हो गया। अगर ये ओपनिंग मैसेज तो ओपन कर दिया, अगर ये है तो पॉप कर दिया, ये कर दिया, स्टैक में किया, हमने बोला कि एलिमेंट रिप्लेस कर दो एट पर्टिकुलर इंडेक्स, अगर वो वैल्यू स्टैक में है तो, अदरवाइज इसको जॉइन कर दो। चलो रन करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। लिस्ट इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर, सही है भाई, इंटीजर करना पड़ेगा। तो here I need to insert one, so I'm simply submitting it because I hope so it will be correct. Yeah, it has been submit. So what is the time complexity? The time and space complexity is big O of n, because we are taking the this space and we are traversing our string only once, so this is big O of n solution. I hope this is clear. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care, and please like and subscribe the channel if you really like the content. Bye bye, take care.